Good morning, students. Good morning, all of you. I welcome you all in the first standard, fifth standard. Okay, I am your history teacher. Now, let's start learning. Okay, lesson number 1. What is history? Okay. History, a science that tells us about the events in the past. History is a science that tells us about इवेंट्स इन द पास्ट, यानी जो घटनाएं घट चुकी होती है उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलते हैं उससे हम क्या कहते हैं, जो घटनाएं हो चुकी है उससे हम पास्ट कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही पास्ट में घटी हुई घटनाओं की बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें देता है वो कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री। ओके, a science that tells us about events in the past. Last year in standard 4th we studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. हमने क्या पढ़ा last year? We have studied about the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. Okay, the time before the birth of Shivaji Maharaj was about 400 years before now. शिवाजी महाराज का जो पीरियड था, जो कालखंड था, वो कितने साल पहले का है? 400 years पहले का है। और in the other words, the time 400 years ago. Okay, the time that has already gone by is the past. जो समय बीता हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। The time that we are in now is the present. अभी हम जिसमें हैं वो कौन सा है? current period, present. Okay, the time that is yet to come is the future. और जो आने वाला है, जो अभी तक आया नहीं है, that is we say future. Okay, the past includes many events that have already taken place. पास्ट में क्या include means consist, क्या consist होता है? बहुत सारे events जो already घट चुके होते हैं। Events means प्रसंग और घटना। The science that tries to understand past events is called history. और ये जो past है, past में घटी हुई घटनाएं हैं, वो समझने के कोशिश करने वाली जो ब्रांच है उसे क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। ओके, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री. Now let us see the scientific method of history. In standard 3rd and 4th, as part of environmental studies, we have become acquainted with various sciences. हमने क्या पढ़ा 3rd और 4th में? environmental science. Okay, we learn environmental science in 3rd and 4th. We have become acquainted. Acquainted means what? Acquainted means knowing, परिचित होना, with various sciences just like geography or ecology, right? The special characteristics of all these sciences is that ये सारे साइंस की जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी उसकी विशेषता ये है कि their facts means truth and evidence means proof can be tested in experiments. यानी experiments means scientific test, यानी वो proven है, इससे प्रूवन है, लेबोरेटरी से प्रूवन है, साइंटिफिक टेस्ट उनकी हो चुकी है और उससे वो प्रूव है, ठीक है। विच कैन बी रिपीटेड एनीवेयर एनी टाइम, जो हम कहीं पर भी जाके देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen, 2 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen combine to form water molecule. Okay, यानी ये क्या है? ये प्रूवन फैक्ट है साइंस की, है ना। वैसे बाकी सारे जो हमने पढ़ा है एनवायरमेंटल स्टडीज में, जो साइंस हमने पढ़े हैं उसमें भी ये लागू होता है। This rule is applied to their sciences also. The method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called scientific method. Scientific method means what? The method of using a number of different tests. यानी ऐसी पद्धति जिसमें बहुत सारी टेस्ट की जाती है to determine means to decide whether the evidence यानी जो प्रूफ है वो reliable यानी विश्वास रखने लायक है या नहीं है। और ऐसी जो पद्धति है, इस पद्धति से जब हम टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उससे कौन सी मेथड कहते हैं? The scientific method. What method we call that? The scientific method. Okay, once again I repeat, the method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. There are many things that happened since our birth that was
that we may not know about. ऐसी कई घटनाएं घट चुकी रहती हैं हाँ हमारे साथ जब हम बचपन में छोटे होते हैं. However, our grandparents or parents or other often tells us amazing stories of our childhood. हमें हमारे childhood की यानी बचपन की बहुत सारी stories सुनाई जाती है. Those stories are a part of their memory. However, when different people tell us about the same event, we find differences in their narrations. Narration means telling. जब वही घटना या प्रसंग जब कोई दूसरा हमें बताता है और तो क्या होता है It makes us wonder which one is right. यानी अगर कोई घटना जो हमारे पेरेंट्स ने बताई है या फिर परिचित लोगों ने या फिर रिलेटिव्स ने बताई है तो दोनों के बताने में एक्सप्लेनेशन में क्या रहता है डिफरेंस रहता है. तो फिर हमें क्या करना पड़ता है क्लैरिफाई करना पड़ता है which one is right. Okay, we need to examine the details of each narration carefully to decide the correctness of the fact. तो फैक्ट क्या है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एग्जामिन करना पड़ता है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और किसी से पूछना पड़ेगा उसके डिटेल में जाना पड़ेगा. राइट. It is not possible to conduct experiments to recreate the events that have happened in the past. अगर कोई घटना घट चुकी है पास में तो वो हम तो क्या नहीं होता हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता. इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट करना टू रिक्रिएट द इवेंट. वो हम फिर से रिक्रिएट नहीं कर सकते दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट. देयरफॉर द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर साइंसेस. इसलिए हिस्ट्री जो है हिस्ट्री की जो मेथड है वो बाकी साइंस से क्या है डिफरेंट है. कौन सी मेथड प्रूविंग मेथड यानी प्रूव करना कि हाँ ये जो है ये घटना ऐसी ऐसी घटी थी और इसके लिए ये प्रूफ है. तो ये जो प्रूव करने की जो मेथड है वो हिस्ट्री की बाकी साइंस से अलग है. ठीक है. इवन सो हिस्ट्री यूजेस द साइंटिफिक मेथड एट एवरी स्टेज. लेकिन फिर भी हिस्ट्री क्या करती है साइंटिफिक मेथड यूज करती है. Namely, while looking for and collecting evidences, examining the evidence and while putting it together. जब कोई घटना या प्रसंग होता है तो while looking for and collecting evidence तो वो घटना किस तरह से घटी हुई उसके evidences यानी proof क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं फिर उसके ऊपर एग्जामिनिंग करते हैं और यानी टेस्ट करते हैं कि ये सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है. Okay, when required help is also taken from other sciences. और वो बात की सच्चाई तक जाने के लिए घटना की सच्चाई तक जाने के लिए क्या करते हैं बाकी जो ब्रांचेस है साइंस की उसकी भी हेल्प लेते हैं. दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. और इसलिए हिस्ट्री को क्या कहा जाता है साइंटिफिक डिसिप्लिन. हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन. वी कांट राइट हिस्ट्री ओनली by imagination. Ancient objects, structures, sculptures, pots, coins, inscriptions, copper plates, books, manuscripts, traditional stories and songs remembered over many generations, etc. are the sources of history. Sources of history कौन से? Once again I repeat, ancient objects, structures, sculptures. Ancient object means what? पुरानी वस्तुएं. ठीक है. Structures, then sculptures, then pots, coins, inscriptions यानी छपे हुए. copper, see the picture given in the page. जैसे pots है, copper plate है, then books and manuscripts है, coins है ना. manuscripts यानी handwritten documents. That means manuscripts. Traditional songs, traditional stories यानी जो हम हमारे father, grandfather से सुनते आ रहे हैं. and songs remembered over many generations, etc. are the sources of history. Okay, those sources of history are of three types. History के sources के कितने प्रकार है? Three types. Okay, material sources, written sources and oral sources. Okay, in order to find out what happened in the past and how it happened, evidence available from all these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. See what they said. In order to find out what happened in the past में क्या हुआ है ये जानने के लिए एंड हाउ इट हैपेंड और वो किस तरह से हुआ है ये जानने के लिए एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेस यानी ये तीनों सोर्सेस है. कौन से? मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस और ओरल सोर्सेस. उससे जो भी एविडेंस मिलते हैं हमें वो एविडेंस कलेक्ट करके उसके ऊपर थरोली एग्जामिन किया जाता है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है एंड देन डिटरमाइन मींस डिसाइड किया जाता है कि ये ना रिलायबल यानी विश्वास रखने लायक है.
कितना ट्रुथफुल है। With the help of the evidence that stands, these days past events are put in a proper sequence and a historical account is written. और फिर क्या होता है, with the help of the evidence, यानी जो हमारा एविडेंस हमारे सामने है, एविडेंस मीन्स प्रूफ, पुरावा, ठीक है, जो हमारे सामने है, जिससे यानी हमने जो क्रिटिकली एग्जामिन किया है और वो प्रॉपर सीक्वेंस से, मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से वो लगाया जाता है, प्रॉपर सीक्वेंस में वो लगाया जाता है, एंड हिस्टोरिकल अकाउंट इज रिटन, और उसके ऊपर एक हिस्टोरिकल अकाउंट यानी एक आर्टिकल लिखा जाता है। दिस इज द साइंटिफिक मेथड, और उसे ही क्या कहा जाता है, साइंटिफिक मेथड कहा जाता है, ठीक है। नाउ history and us. The study of science helps us to find the answers to many questions. For example, environmental science studies the problem of degradation of the environment, pollution, etc., and looks for their solution. In the same way, every science has its own areas of study. History studies events of the past. यानी हर एक जो साइंस है, वो साइंस क्या करता है, for environmental science studies the problem of degradation of the environment, pollution, etc., and looks for their solutions. यानी हर एक साइंस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है ना। उसी तरह से हिस्ट्री स्टडीज इवेंट इन द पास्ट। हिस्ट्री को अगर सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का, तो वो किसकी स्टडी करेगी, पास्ट में जाके। ओके, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस। हमारी जो एक्शन होती है इंडिविजुअल यानी अकेले की, और या फिर कलेक्टिव, कलेक्टिव यानी इकट्ठा, एक साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका क्या होता है, परिणाम होता है। कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम। दे रिजल्ट इन एन एनवायरमेंट दैट मे बी आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। दिस अफेक्ट अवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर, द विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस। अगर विलेज को अपनी प्रोग्रेस करनी है, विलेज मीन्स खेलेगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा मिलकर काम करना पड़ेगा। इफ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर, द विलेज मेक गुड प्रोग्रेस। However, if the people cannot come together, अगर वो एक साथ नहीं आए, it puts obstacles in the way of its development. तो विलेज की डेवलपमेंट होगी क्या, नहीं, उसके उसमें क्या आएगा, obstacle means what, hindrance means अड़थड़ा, problem. History attempts to find out answers to many questions by studying the way of thinking of past societies, their actions and the consequences. तो हिस्ट्री क्या करती है, अटेम्प्ट करती है, किसके कौन सा अटेम्प्ट करती है, टू फाइंड आउट आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस by studying the way of thinking of past societies. यानी पुराने लोग किस तरह से सोचते थे, किस तरह से काम करते थे, है ना, और उनके काम का नतीजा क्या होता था, इसके ऊपर हिस्ट्री स्टडी करती है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हिस्ट्री हमें क्या बताती है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल होता है हमारे लिए, टू स्टडी व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यानी ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। History thus provides us with guidelines about how we should behave today in order to shape a good future. Now, by studying history, we learn about the progress of human civilization. History से हमने क्या पढ़ा है, हमारे डेवलपमेंट किस तरह से हुई, ठीक है। We also understand how people's way of life went on changing. और लोगों का जो जीवन था उसमें कैसे कैसे changes आते गए, stages of changes. Every village, city, district, state and country has its own history. Similarly, the earth, its mountains, water bodies, the animal world, mankind all have their own history. जैसे हर एक खेड़े गांव, शहर, जिला, राज्य और देश सबको क्या रहती है, अपनी अपनी हिस्ट्री रहती है। उसी तरह से अर्थ, माउंटेन, वाटर बॉडीज, एनिमल वर्ल्ड, मैनकाइंड सभी को क्या रहती है, अपना अपना इतिहास रहता है। एवरी साइंस टू हैज अ हिस्ट्री. इट टेल्स अस tales of the many scientific discoveries that brought about important changes in human civilization and of the scientists who made those discoveries. हर एक साइंस में, every science has to has history. हर एक साइंस की अपनी एक हिस्ट्री होती है, ठीक है, और वो हमें क्या बताती है, कौन से साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई और वो साइंटिफिक डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की, है ना, और उसका हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन पे, हमारे ह्यूमन सोसाइटी पे क्या परिणाम हुआ, ठीक है।
Now, the past and the future. The past, present, and future are linked by a continuous chain of events. See, for example, the Indian people fought against the British government to get independence. Indian people ने क्या किया? They fought against the British government. किसके विरुद्ध लड़ाई की? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर विरुद्ध, ठीक है. एंड इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. हमें स्वराज्य कब मिला? ऑन 15 अगस्त 1947. सो वी कैन से दैट, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इंडिपेंडेंस वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन, दैट इज द इंडियन पीपल्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. उसी का नतीजा क्या हुआ? हमें क्या मिला? स्वराज्य मिला. ओके. In this way, the events of today are linked with past actions. तो इसका मतलब क्या होता है? आज का जो आज जो घटना घटी हुई है उसकी लिंक कहीं ना कहीं पास्ट को जाके मिलती है ना. अगर आप आज अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपका फ्यूचर क्या है? ब्राइट है, राइट. व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस, जब हम वी रियलाइज दैट द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन पास्ट इवेंट्स. दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. हमने हिस्ट्री से क्या सीखा है? कि the future depends on past events. Okay. For example, we learned that man began to make tools from materials available in nature. That he learned how to make use of fire and that he invented the wheels. जैसे example दिया है, we learned that man began to make tools. Human being ने क्या जो मटेरियल अवेलेबल था नेचर में, उसी से क्या बनाया उन्होंने? हथियार बनाए, टूल्स बनाए, है ना. दैट ही लर्न हाउ टू मेक यूज फायर. बाद में उसने क्या सीखा? फायर का यूज किस तरह से किया जाता है, हाउ टू यूज फायर. एंड दैट ही इन्वेंटेड द व्हील. और उसने बाद में किसका शोध लगाया? व्हील का. व्हील यानी चक्र. और जैसे ही व्हील का शोध लगा वैसे ही हमारे जो प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग की उसको भी क्या आ गया? यानी उसको भी गति मिल गई. ठीक है. The next generations added to these developments. Technology developed further hand in hand with the physical and intellectual development of man. हमारे physical और intellectual development में किसका हाथ है? टेक्नोलॉजी का भी हाथ है. ठीक है. This process is going on continuously. और ये प्रोसेस अभी भी शुरू है in today. Inventions of today are only possible on the foundation of the discoveries and invention of the past. आज जो हमारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए शोध लग रहे हैं, वो क्यों पॉसिबल हो रहे हैं? क्योंकि इन्वेंशन ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द, फाउंडेशन मींस बेस, इसके ऊपर आधारित है वो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट. यानी पास्ट में जो इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुए हैं वही हमारे आज के इन्वेंशन का बेस है, यानी आधार है, राइट. क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लिंक हमें पास्ट में जाके मिलती है. पास्ट में जो घटनाएं घटी हुई रहती है उससे जो हम सीखते हैं उससे हमें क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है. और वो एक्सपीरियंस ही हमें नए नए उस एक्सपीरियंस से हम नया सीखते हैं और नए नए इन्वेंशन और डिस्कवरीज पॉसिबल होती हैं. ओके, फाइन. Here our first lesson of what is history is over, and your homework is that solve the fill in the blanks and complete the concept map. Okay, your homework is that solve fill in the blanks and complete the concept map. Okay, and read lesson carefully. Yes.
This is your homework. And one more thing, don't forget to read lesson once again. Don't forget to read lesson once again. Okay. Underline hard words and find out meaning from dictionary. Okay. And solve this exercise. Here our period is over, and in the next period we will revise the lesson once again, and then afterwards we will solve the exercise. Okay. Bye bye.